हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, Yes, all of you are getting my voice properly? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? yes, sir. Okay, so fourth lab has been over now. Yeah, so we start with the four experiment हो गए हैं आपके. So we come to experiment number 5. Clear? So last time हम लोगों ने experiment number 4 डिस्कस किया था, multiplication and division of 8-bit numbers using 8085. Yeah. So today we will discuss about programming to initiate 8251 and to check the transmission and the, reception of characters. Clear? So पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें कि इस प्रोग्रामिंग में हमारा क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि जैसे 8251 है, उसको हम लोग इंटरफेस कराएंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ एंड वी जस्ट चेक द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल. मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वी जस्ट इंटरफेस विद दैट. क्लियर? सो दैट वी कैन चेक द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल्स और कैरेक्टर्स. क्लियर? तो ये चीजें हमको चेक करनी है. यू कैन सी. सो ये सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को दिख रहा है. बच्चों ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Okay, so just wait. I'm just sharing you the video of that experiment that is demonstrated into the lab. So you all are also requested to mark your attendance as well in this lab. So अपना सभी लोग attendance भी mark कर दीजिए. So I'm just sharing you the file. Just wait. Okay. So now we have available with the experiment. Clear? So I'm just sharing you. Okay. I'm sharing you a file. Just wait. Hello, dear students. Now we have the experiment number 6, that is to write the program to sharing you the file. Just wait. तो ये दिख रहा है सभी को? ये सभी को दिख रहा है? शेयर किया है अभी मैंने. Is it visible? हेलो, ये सभी को Yes, दिख रहा है? sir. Yes, So sir. this is the ये जो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, this is the lab demonstrated video. Clear? So जो कि यहाँ लैब में परफॉर्म हुई है. ठीक है, तो ये आपका इसी से रिलेटेड है. इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा. इसमें कैसे हम लोग इंटरफेसिंग करते हैं, देन हाउ द सिग्नल इज गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड. सो आपको जो भी कैरेक्टर आपके ट्रांसमिट रिसीव हो रहे होंगे वो सब आपको शो होंगे. ठीक है. सो वी हैव ये जो अभी सामने दिख रहा है ये एक मैनुअल है. सो मैनुअल में सारा प्रोसीजर एंड प्रोग्रामिंग कोड्स आर गिवन here, and also the output that will reflect into the display device that will you can monitor. Clear? So I'm just showing you.
initiate 8251 and to check the transmission and reception of character. Clear? In this character. Hello dear. सभी को ऑडियो आ रही है इसकी? All of you are getting the audio of this? जो ऑडियो आ रही थी सभी को, वीडियो और ऑडियो दोनों आ रही है? Yes. Okay, so listen it carefully. Clear? I'm just sharing. Student, now we have the experiment number 6, that is to write the program to initiate 8251 and to check the transmission and reception of characters. Clear? So in this experiment, basically the programming for the 8251 will be done, and this will be interface. You can see this is what this is 8251 interface card. Basically, it is interface with the this is your microprocessor, basically 8085. So interfacing is done through 8251 interfacing kit basically, and this is, you can see, this is what interfacing. So the data can be transmitted through this basically the interfacing, we can say this is interfacing card. Now we will type the instruction through this keyboard on this 8085 microprocessor. Now this is the table through which we type the instructions. You can see we have the addresses that will having the machine codes exactly. So the machine code will be typed through this keyboard, and that will be displayed on this 8085 display kit basically. And this is the Menimix, basically belong to this address and machine code. Now we are going basically in this, what we will do, we will try to check the transmission and reception of the character with the 8251 kit basically. Now we are going to start the procedure, so you can see now start. इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 8251 स्टडी कार्ड को किट से इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस मतलब एफआरसी केबल के थ्रू हम इंटरफेस कर दिए। ये आपका इंटरफेस हो गया। अब आप यहाँ मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, ये जो बीच में व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर किट है। ये आपका रीसेट बटन है। क्लियर? ये आपकी डिस्प्ले है, यहाँ पे कैरेक्टर शो होंगे। ठीक, जो भी हम मशीन कोड टाइप करेंगे दैट विल बी टाइप्ड ओवर हियर, क्लियर, थ्रू द कीबोर्ड। ये आईसीज लगी हुई हैं इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 किट के ऊपर। ठीक, ये हमारा जो लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, इट इज नॉट इनटू द पिक्चर राइट नाउ। सो ये जो लेफ्ट पोर्शन है यही आपका 8251 है, इसको हमने इससे कनेक्ट किया हुआ। ये व्हाइट कलर का आपको जो ये कनेक्शन दिख रहा होगा, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमने कनेक्ट किया हुआ, ये इंटरफेसिंग कार्ड है। ठीक है, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो इसको अभी हम देखेंगे कि ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने इंटरफेस कार्ड लगाया हुआ है 8251 के थ्रू, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसमें ट्रांसमिट एंड रिसीव होगी। जो भी 8251 की हैं वो इसमें जाएंगी या इसमें जाएंगी। सो वाइस वर्सा इज देयर। क्लियर? सो अभी देखिएगा, हम लोग जब कमांड टाइप करेंगे तो इस पे टाइप करेंगे, किस पे? 8085 पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेस कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, प्रोग्राम को टाइप करेंगे। प्रोग्राम एड्रेस आपका 2000 से स्टार्ट है, तो M प्रेस किया और 2000 यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस किया। तो 2000 पे मेरा डाटा क्या है? 3E टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब 1 पे क्या है? 4E टाइप किया, एंटर प्रेस किया। फिर आपका पे क्या है? D3 एंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है? 3 पे क्या है? 2D
एंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है 3E, 3E एंटर प्रेस किया। 5 पे क्या है 0 5 एंटर प्रेस किया। 6 क्या है D3, D3 एंटर प्रेस किया। फिर 7 पे क्या है आपका 2B, 2B एंटर प्रेस किया। 8 पे क्या है DB, DB एंटर प्रेस किया। 9 पे क्या है 2B एंटर प्रेस किया। A पे क्या है E6, E6 एंटर प्रेस किया। B पे क्या है 02 एंटर प्रेस किया। C पे क्या है CA एंटर प्रेस किया। D पे क्या है 08 एंटर प्रेस किया। और E पे क्या है 20 एंटर प्रेस किया। फिर आपका F पे क्या है DB, DB एंटर प्रेस किया। फिर 10 पे आपका क्या है 28 एंटर प्रेस किया। 11 पे क्या है 57 एंटर प्रेस किया। 12 पे क्या है 00 एंटर प्रेस किया। 13 पे क्या है DB, DB एंटर प्रेस किया। 14 पे क्या है 2B, 2B एंटर प्रेस किया। 15 पे क्या है E6, E6 एंटर प्रेस किया। और 16 पे क्या है 01 एंटर प्रेस किया। 17 पे CA एंटर प्रेस किया। 18 पे क्या है 18 एंटर प्रेस किया। 19 पे क्या है 20 एंटर प्रेस किया। फिर A पे क्या है 7A एंटर प्रेस किया। फिर 1B पे क्या है D3 एंटर प्रेस किया। 1C पे क्या है 28 एंटर प्रेस किया। और 1D पे क्या है C3 एंटर प्रेस किया। 1E पे क्या है 08 एंटर प्रेस किया। 1F पे क्या है 20 एंटर प्रेस किया। अब इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। किट नॉर्मल मोड पे आ गई। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे जी प्रेस करके। जी हमने प्रेस किया और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हम डालेंगे 2000। This is the start address. Around here we are 2000 starting. फिर शिफ्ट प्लस $साइन प्रेस करेंगे। ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें 4 बिट के 2 नंबर हैं। ये फर्स्ट 4 पहला है और इधर सेकंड 4 ये दूसरा है। इसका LSB ये है और MSB ये है और दूसरे वाले का LSB ये है, MSB ये है। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है आपका 4E। तो ये आपका आ गया 1 2 4 मतलब LSB ये है 1 2 4 4 ये नंबर ये हुआ और 1 2 4 8 ये हुआ। जो ग्लो कर रहा है वो 14 हो गया आपका। 14 का मतलब E, तो ये हो गया 4E। जब यहाँ से ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दूसरा आउटपुट दिखलाएगा 05 मतलब ये आपका ये 0 हो गया
दूसरा वाला 4 बिट, और यहाँ पे देखिए 1 2 4 जो ग्लो कर रहे हैं 1 और ये 4, ये 5 हो गया तो 0 5 हो गया, ये आपका आंसर हुआ। जो एलईडी ग्लो कर रही है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं को हमें ऐड करना है। ओके, सो नाउ the interfacing is done, and we have seen that how the transmission and reception of through 8251 is achieved. So thank you very much. वीडियो समझ में आई सभी को? हेलो हेलो बेटा, वीडियो समझ में आई? वीडियो समझ में आई अभी जो ये शेयर किया था? अदरवाइज दोबारा शेयर करूं? हेलो क्लास आवाज आ रही है? मैंने पूछा ये वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आई जो भी शेयर किया था? यस सर। यस सर। एक्चुअली ये क्या हो रहा था, जो भी हमारे पास, तो देखिए दो, पहले तो ये समझना आपके पास ये किट बेस एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? एक तरफ हमारे पास 8251 है, एक तरफ 8085 है, ठीक है? दोनों को हमने इंटरफेस किया हुआ है थ्रू इंटरफेस कार्ड, जो कि वाइट कलर का था। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो एक टेबल आपको दिख रही होगी जिसमें हमारे निमोनिक्स वगैरह गिवन थे एड्रेसेस पे, ठीक है? तो उनको हमने टाइप किया, ठीक है? जब हमने उनको टाइप किया, जो भी डेटा हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल था हमारे पास टेबल के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हमने उनको टाइप किया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड हुई कहाँ पे? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जो कि हमारा डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा था जो भी हम टाइप कर रहे थे, ठीक है? फॉर ए गिवन एड्रेस वी आर जस्ट टाइपिंग द डेटा बिट्स, ठीक है? इसके बाद हमने उसको एग्जीक्यूट किया, रन कराया, देन वी गेट द, तब हमने 8251 पे चेक किया कि जो भी सिग्नल्स हमारे यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया, जो भी रन कराया, तो क्या वो इधर से उधर इंटरफेस होने के बाद ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है? वी हैव जस्ट चेक इट ऑन टू द 8251 इंटरफेस का। तो उस 8251 किट के ऊपर हम लोगों ने चेक किया लास्ट में, that is displayed on that, clear? So इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग इसमें एग्जीक्यूट कराते हैं। If someone have any issue, then I may share it again. Clear? दोबारा शेयर कर रहा हूँ वीडियो, एक बार और देख लीजिए। Most of you have not clear the concept. I'm just again share it, so you may just clear the concept. Clear? Hello dear student, now we have the experiment number 6, that is to write the program to initiate 8251 and to check the transmission and reception of characters. Clear? So in this experiment basically the programming for the 8251 will be done, and this will be interface. You can see this is 8251 interface card. Basically it is interface with the this is your microprocessor, basically 8085. So interfacing is done through 8251 interfacing kit basically, and this is, you can see, this is what interfacing. So the data can be transmitted through this basically the interfacing we can say this is interfacing card. Clear? Now we will type the instructions. ये शेयर हो रहा है बेटा? अभी नहीं शेयर हो रहा है। This 8085 microprocessor. Yes sir. Now this is the table through which we type the instructions. You can see we have the addresses that will having the machine codes exactly. So the machine code will be typed through this keyboard, and that will be displayed on this 8085 display kit basically. And this is the Menimix, basically belong to this address and machine code. Now we are going basically in this, what we will do, we will try to check the transmission and reception of the character.
with the 8251 kit basically. Now we are going to start the procedure, so you can see now start. इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 8251 स्टडी कार्ड को किट से इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस मतलब एफआरसी केबल के थ्रू हम इंटरफेस कर दिए। एफआरसी केबल है ये बेटा, आपका इंटरफेस हो जिससे हम गया। लोग कनेक्ट कर अब रहे हैं। आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। प्रोग्राम एड्रेस आपका 2000 से स्टार्ट है, तो एम प्रेस किया और 2000 यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस किया। तो 2000 पे मेरा डाटा क्या है 3। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अभी जो आपने लेफ्ट वाली किट देखी थी वो 8251 की, ये ध्यान रखिए, और राइट वाला आपका 8085, ठीक है। तो जब सिग्नल हमारा जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा इसमें से उधर, वो आपको वहां पे 8251 पे डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। अभी देखिएगा, जब सारी हम टाइपिंग कर लेंगे, ये हमारे मशीन कोड्स हैं, इनको हम टाइप करेंगे। इसको टाइप करने के बाद 8085 पे भी जस्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, देन वी गेट द रिजल्ट। क्लियर? सो वी देखते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझिएगा। टाइप करके इंटर प्रेस किया। अब 1 पे क्या है 4E टाइप किया, इंटर प्रेस किया। फिर आपका 2 पे क्या है D3 इंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है 3 पे क्या है 2D इंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है 3E इंटर प्रेस किया। 5 पे क्या है 05 इंटर प्रेस किया। 6 क्या है D3 इंटर प्रेस किया। फिर 7 पे क्या है आपका 2B इंटर प्रेस किया। 8 पे क्या है DB इंटर प्रेस किया। 9 पे क्या है 2B इंटर प्रेस किया। A पे क्या है E6 इंटर प्रेस किया। B पे क्या है 02 इंटर प्रेस किया। C पे क्या है CA इंटर प्रेस किया। D पे क्या है 08 इंटर प्रेस किया। और E पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। फिर आपका F पे क्या है DB इंटर प्रेस किया। फिर 10 पे आपका क्या है 28 इंटर प्रेस किया। 11 पे क्या है 57 इंटर प्रेस किया। 12 पे क्या है 00 इंटर प्रेस किया। 13 पे क्या है DB इंटर प्रेस किया। 14 पे क्या है 2B इंटर प्रेस किया। 15 पे क्या है E6 इंटर प्रेस किया। और 16 पे क्या है 01 इंटर प्रेस किया। 17 पे CA इंटर प्रेस किया। 18 पे क्या है 18 इंटर प्रेस किया। 19 पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। फिर A पे क्या है 7A इंटर प्रेस किया। फिर 1B पे क्या है D3 इंटर प्रेस किया। 1C पे क्या है 28 इंटर प्रेस किया। और 1D पे क्या है C3 इंटर प्रेस किया। 1E पे क्या है 08 इंटर प्रेस किया।
1F पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। अब इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। किट नॉर्मल मोड पे आ गई। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे जी प्रेस करके। जी हमने प्रेस किया और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हम डालेंगे 2000। This is the start address from where we are starting. 2000। ये भी बेटा, ये भी आप लोग को जानना है कि कैसे हम किट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। 8085 एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, हम कैसे इसमें क्या क्या बटन की प्रेस करेंगे, ये भी हम लोग इसीलिए वीडियो में मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर रन कराने के लिए हम क्या, और रीसेट बटन का क्या रोल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर शिफ्ट प्लस $साइन प्रेस करेंगे। ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें 4 बिट के 2 नंबर हैं। ये फर्स्ट 4 पहला है और इधर सेकंड 4 ये दूसरा है। इसका LSB ये है और MSB ये है और दूसरे वाले का LSB ये है, MSB ये है। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है आपका 4E। तो ये आपका आ गया 1 2 4, मतलब LSB ये है 1 2 4 4, ये नंबर ये हुआ और 1 2 4 8 ये हुआ। जो ग्लो कर रहा है वो 14 हो गया आपका। 14 का मतलब E, तो ये हो गया 4E। जब यहां से ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दूसरा आउटपुट दिखलाएगा 05, मतलब ये आपका ये 0 हो गया दूसरा वाला 4 बिट। और यहाँ पे देखिए 1 2 4 जो ग्लो कर रहे हैं 1 और ये 4, ये 5 हो गया तो 05 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। जो LED ग्लो कर रही है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं को हमें ऐड करना है। So now okay, so now the interfacing is done and we have seen that how the transmission and reception of through 8251 is achieved. So thank you very much. आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा बस। हेलो, ये सबको समझ में आ गया जो भी ये नो दोबारा हमने वीडियो को डिमॉन्स्ट्रेशन आपको शो किया है। सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और एनीथिंग डाउट? तो एग्जैक्टली जो भी कैरेक्टर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है 8251 पे इन द फॉर्म ऑफ LED ग्लो। जो LED ग्लो कर रही है उसी से हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस 8251 के। क्लियर? सो यू कैन जस्ट वेरीफाई दैट दिस पर्टिकुलर data is available. Clear? So it means it is glowing. So is there any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है बेटा? कोई पूछ? Okay. So demonstration समझ में आ गया सभी को? Demonstration सभी को समझ में आ गया? Is there any doubt in the demonstration? Demonstration समझ में आ गया? Video. Okay, Yes, I sir. have some questions. I have some questions regarding 8251 also. So, what is 8251? Anyone? 8251 के बारे में कोई जानता है? Anyone have heard about 8251?
8251 बेसिकली एक यूजार्ट होता है जो एक्ट एज ए मीडिएटर काम करता है बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल टू ट्रांसमिट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल फॉर्म। ठीक है, सो एक तरह से जो हमारा 8251 होता है ये यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर है। क्लियर, दिस इज ए यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर जो कि रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो ये रिसीवर एज वेल एज ट्रांसमीटर बोथ है, तो इसीलिए इसको यूजार्ट बोलते हैं। दैट हैविंग यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। क्लियर, सो एक पेरिफेरल की तरह काम करता है, बट सॉरी एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल। ठीक है, जिसमें हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है सीरियल फॉर्म, सीरियल से इनटू पैरेलल फॉर्म। क्लियर, या पैरेलल टू सीरियल फॉर्म, दोनों वे में हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए अभी हम लोग देख रहे थे कि हाउ द कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और वाइस वर्सा। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? So I will also share you the regarding जो भी इसका आपको मैनुअल है, I will share you on your Google Classroom and you all be prepared for the video will I will share the video also into the I will provide you the link of this video so that on the Google Classroom so that you can access it. Okay, also after this 5 experiment, as you all know, this is your 5th experiment. So after this 5th experiment, there will be a midterm, lab midterm. Clear? So in view of that, there will be 20 questions from and 4 questions from each 5 experiment in MCQ form. So the test will be on your Google Classroom. So these 20 questions will be there out of 5 experiments. 4 questions from each experiment will be there. So 20 questions will be there. Clear? So as you are as you all do for the quizzes, so like that there will be a MCQ based test based on the lab. Clear? That you have demonstrated into the lab duration. Clear? So इस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि का लैब मिडसेम में कवर होगा। क्लियर? Am I clear to all of you? Class, am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so as Yes, sir. तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि 5 एक्सपेरिमेंट चूंकि आपके ओवर हो रहे हैं, तो view of that the you can say the lab medicine will be allotted to you all. Clear? So be prepared for that. Is it clear? Is it clear to all of you, बेटा? सभी को क्लियर हो रही है चीजें? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, so is there any doubt to someone? So you may ask regarding this experiment. Is there any doubt to anyone? Okay, so I think a few of the students have not been appeared for the Viva in the last time. So I just have the list. So, okay, so the list now. Okay. So roll number 67. Roll number 67.
number 6 and roll number 7. Then we have roll number 10. Then after that, the roll number 17. Then roll number 19. And we have roll number 24. Then roll number 30. जितने लोगों का मैंने अभी रोल नंबर लिया है, डिस्कस किया है, do they are available or not? Any one of them? Hello? आवाज आ रही बेटा सभी को मेरी? Yes, sir. I have taken the name of the name, not name. I have just taken the roll number. Clear? So any one of you are available or not? Roll number 6 and 7, like Abhinav Singh and Abhinav Pratap Yadav. Not available. Okay, roll number 10. Abhishek Chaubey. सर Yes. सर हम लोग सर लीव कर सकते हैं जो दे चुके हैं पहले? नहीं लीव नहीं करना है अभी. ओके सर. Roll number 10, Abhishek Chaubey is there. Then we have roll number 16. No, sorry. Roll number 17. Anamika. Then we have roll number 19. Animesh Sinha. Then we have roll number 24. Anshika Bhupendra Singh. Then we have Yes, roll sir. number 30. Ayush Bajpayee. Who is this? किसने respond किया अभी? Anshika, are you there? Anshika. Okay, so nobody is responding. To durations of the lab. Yes. So there reason if you are absent for the lab during the year and marks will be taken. I have just taken the name of those students who have not had Viva portion of the lab, so they might be considered as absent. Is it clear? Okay, so so what I have told you about that, I just want to share you a file. Just wait. About 8251. Clear? Just wait. I am sharing the file. Okay, I'm just sharing you the file. Just wait. ये सभी को दिख रहा है? Is it clear to all of you? ये सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Is it visible to all of you? Yes, sir. ये देख सकते हैं आप. This is the pin description of this 8251. जब हम लोग 8251 की बात कर रहे थे, this is the pin description of 8251. ये बेसिकली आपका जो होता है ये यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन, जिसको हम यूजार्ट भी बोल सकते हैं. It acts as a mediator between the microprocessor and peripheral device. It converts serial data to parallel form and vice versa. So the chip is 28 pin TIP. So ये देख सकते हैं हम. This is 8251A. This is the pin diagram of this. So D0 to D7 is the data.
that is the bidirectional. This pin is reset. Then we have clock. ठीक है, रीड राइट CS, DSR, DTR, CTS, RTS, ये सारे जितने भी सिग्नल्स हैं, सप्लाई वोल्टेज, रेडी सिग्नल, क्लियर. So everything is given, transmitted data, ground, received data, ready signal, clear. Everything is given over here, so you can see, and the pin description is also available. So if you see the pin description, T0 is for parallel data. ठीक है, जो हमारा डेटा हमने बताया था से, that may be from serial to parallel form और parallel to serial form, क्लियर. जो भी हमारा इंटरफेसिंग के दौरान डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. C/D bar is what? Control register or data buffer select. Then read RD bar is the read control. WR bar is the write control. CS bar is the chip select. Then we have clock pulse reset. Then we have transmitter clock. Then we have transmitted data. Then we have receiver clock, receiver data. Then we have receiver ready, transmitter ready, data set ready, data terminal ready, synchronous detect break, here request to send data, clear to send data, transmitted empty, ठीक है. VCC, that is 5 volt ground voltage, everything is given, and this is how the communication done, clear. So you can see we have an internal data bus between communication, you can see, clear. We have now data bus buffer. So ये देख सकते हैं आप, ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम 8251 का. वी हैव 82, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव D7 से D0 जो है वो डेटा बस बफर है. रीड राइट ऑब्लिक कंट्रोल लॉजिक आप देख सकते हैं, जिसमें रीसेट क्लॉक और ये जितने भी पिंस लगे हुए रीड राइट, ठीक है. देन वी हैव मॉडम कंट्रोल, that is again bidirectional communication is there with the internal data bus. Then we have a transmit buffer. Then we have a transmit control. Then we have a receive buffer. Then we have a receiver control. Clear? Everything is connected. So there are 5 different sections in this diagram, like read write control logic. 5 different section आपको दिख रहे होंगे, ठीक है. रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेटा बस बफर एंड मॉडम कंट्रोल, ठीक है. अब ये आप देख सकते हैं इंटरफेसिंग हम लोग कैसे करते हैं. जो भी हमने आपको इंटरफेसिंग दिखाई थी ना 8085 से, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे ये इंटरफेसिंग हो रही है. अभी इंटरफेसिंग हो रही थी ना 8085 की 8251 से. बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर. जो इंटरफेसिंग हो रही थी वो आप देख सकते हैं किस तरह से हो रही थी, ठीक है. इन दिस डायग्राम वी कैन सी द 8 डेटा लाइंस. 8 डेटा लाइंस कौन सी है? D0 से D7 that are connected to the data bus of the microprocessor. जो 8 डेटा लाइंस हैं, ये जैसे कि D0 से D7 है, ठीक है. ये 8085 की जो डेटा बस लाइन है उससे हमारा 8251 का, ये देखिए राइट साइड वाला 8251 है पिन डायग्राम, और 8085 का लेफ्ट साइड है, ठीक है. दोनों का डेटा बस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं जो बाई डायरेक्शनल D0 से D7 लिख रहा है, दैट इज डेटा बस इज इंटरफेसिंग के दौरान, ठीक है ना. इंटरफेसिंग करते हैं इस तरीके से हमारी डेटा बस आपस में इंटरकनेक्टेड है. देन वी हैव clear, and also the read and write bar of the 8251 are also connected. तो read and write bar देख सकते हैं आपस में connected है, ठीक है, बीच में. Then we have what? The 8251 is getting the clock from the clock out pin of 8085. 8251 को जो भी डेटा एज ए ऑन ऑफ डेटा जो भी मिल रहा है क्लॉक सिग्नल के थ्रू मिल रहा है, क्लियर. That is a clock out of the 8085. तो जो क्लॉक आउट पिन है आप देख सकते हैं वहां से वो डेटा ले रहा है, क्लियर ना. Then reset is also connected to the reset out pin of the microprocessor. ये देख सकते हैं आप reset जो आपका है स्टार्टिंग में reset out pin से कनेक्टेड है माइक्रोप्रोसेसर के, ठीक है ना.
क्लॉक हमारी क्लॉक से कनेक्ट है, जो भी आउटपुट क्लॉक आएगी, जो भी 8085 से आउटपुट क्लॉक है वो इनपुट की तरह काम करेगा 8251 पे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा कुछ कम्युनिकेशन होता है। These are some logic gates you can see on the bottom. So for the communication, the C/D bar pin is used to select either control register or data register. This pin is connected to the A0 pin of 8085. The CS bar pin of 8251 is attached to the output of an address decoder circuit. Address decoder uses A7 to A1 line of the microprocessor. So in this diagram, you can see the CS bar will be enabled when A7 and A4 is at logic 1. तो ये देख सकते हैं आप, ये जो CS बार है जहाँ से हमारा गेट का आउटपुट जो है जाके कनेक्ट हो रहा है 8251 माइक्रोप्रोसेसर उस पे हमारा, तो ये देख सकते हैं CS बार जो है कब मिलेगा, जब A7 and A4 is at logic 1. ये A7 है, ये A4 है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप A7 एंड A4 जो आ रहा है, ये दोनों अगर हमारे हाई होंगे, जो गेट के थ्रू जा रहा है, नॉट गेट से जाएगा तो ये हमारा 1 मिलेगा, नॉट गेट से जाएगा तो 0 बना देगा, यहाँ से A7 को भी 0 बना देगा, 0 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड नॉट गेट से, सॉरी नैंड गेट से तो आपको 1 आउटपुट देंगे, 1 देंगे तो CS बार हाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो CS bar pin of 8251 is attached to the output of an address decoder circuit, and the address decoder uses A7 to A1 lines of the microprocessor, ठीक है। So from the following table we can see how to read or write data word, read the status word and write control word। देख सकते हैं कैसे रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है। जैसे पोर्ट एड्रेस 90H है तो ये रीड डेटा वर्ड है, जिसमें हमारी A0 की वैल्यू 0 है, RD रीड बार 0 है, राइट बार 1 है। फिर हम सेकंड टास्क है हमारा राइट डेटा वर्ड। राइट डेटा वर्ड में देख सकते हैं RD बार इज 1, राइट बार इज 0, A0 इज 0। तो पोर्ट एड्रेस इज 90H। ऐसे रीड स्टेटस वर्ड में देखें तो 101, फिर रीड स्टेटस वर्ड है दैट इज 91H। तो A0 और RD बार 11 हो गया, राइट बार 0 हो गया, तो राइट कंट्रोल वर्ड हो गया दैट इज 91H। क्लियर। So this is how communication is done. I think it might clear to all of you. सभी को क्लियर हो रहा है ये? Okay, so I think all of you have marked your attendance as well. So I am going to close the session. सभी को समझ में आ गया ये? Class. Hello. Yes, sir. Okay, so in the next lab, your midsem will be there. Clear? So I will share you the manual of this, so you may write in your copy here, and it will you will share me on the Google Classroom as well. Clear? So whatever is the respective information regarding the next lab like midsem, and so that will be shared you on Google Classroom. Thank you.